الوداع اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں، ماتم و نوح و غم کی یہ زینتیں، ماتم و نوح و غم کی یہ زینتیں، چاہتا ہے یہ دن یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دن یوں ہی قائم رہے، ہائے پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہیں، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ میرے مہمان ہے آخری سلام، میرے مہمان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، تجھ پہ قربان ہے آخری سلام، شاہ ذیشان 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 ہے آخری سلام، دل ہے ویران ہے آخری سلام، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علم، 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین۔ بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا
سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان 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 ہے آخری یہ سلام دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہم اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علم 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 ہائے افسوس جی بھر کے روئے نہ ہم الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع الوداع اے حسین الوداع الوداع اے حسین الوداع الوداع اے حسین الوداع الوداع اے شہ مشرقین الوداع الوداع اے شہ مشرقین الوداع سبت رحمت کے اے نور عین 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 الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین درود بھیجیے آل محمد دعوت ہو گئی جناب ناصر صاحب کو تشریف لائیں اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ وفي هذا الساعة وفي كل ساعة وحافظا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعوا فيها طويلا دامی دادی چل بیٹھے امام حسین تن تنہا گیا دن میں کو زخماں چا مجبور کیتا دیکھا درد گئے سغرا دے میں زین تری تیلا نہیں سنگدا لا پاسا پار لہا او میرے پھس گئے پیر رکاباں وچ تے میں کو بھی رباس ملا دے نہیں بچ سنگدا میری بھین دا پردہ جا خیمے وچ اطلاع زمین کربلا تے اوکھا تے بھویں سوکھا لے بیٹھی زہرا دا چم گھوڑا کچھ فاصلے تے رکے سوار نظر نہیں آیا واپس ولے امام حسین دے منہ دے نال منہ لا کے آدھے میں گوڑی لینا میری زین تے چڑھیا تے کو مدینے لے ونجنا امام فرمائے دن مدینے نہیں بجنا نانا اکسی آپ آگئے میری ادھیاں کو جنگلہ چھوڑا ہے امام حسین فرمائے دن میں لے بیٹھا میری مک گئی ہے تو ٹر ونج خیمہ گاچوں ایک پگ تلوار لے امانت ہے ونج دے میں آن دماغ او انج نہیں دسنا آج میں لتھاں انج نہیں دسنا آج میں لتھاں تے منڈی بیوہ دی کبرا کو آکھینا آل آرام لہایا اس وچ بن دے پیو ودے میں لے بیٹھا میری مک گئی ہے میں لے بیٹھا میری مک گئی ہے تو ٹر ونج خیمہ گا ایک پگ تلوار امانت ہے ونج دے میں آن دماغ اور انج نہیں دسنا کہ میں لتھاں تے میری بیوہ دی کبرا کو آکھینا آل آرام لایا اس بچ بن دے پیو سغراق حسین سجدہ سر رکھیا ہے پہلا سجدہ دا کیتا ہے شمر خنجر دے وار شروع کیتے ہیں بی بی دیکھ کے آتی ہے میرے ویر دی پاک شرافت دا تے کچھ کرے چاشمار حیائے جت وال وال خنجار چلیں دا ہے اور رسول دی بوسا گا
جت والے والے خنجار چلیندا ہے اور رسول دی بوساگا او میرا غازی ویر موجود ہوندا او ماڑا او میرا غازی ویر موجود ہوندا تے تکوں دیوے ہاں سمجھائے تکوں بھین دے سامنے پتہ لگ ویندا کنے ہوندے نے قتال میرا جزاک اللہ جزاک ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ میں درخواست کروں گا آخری علی بعد جناب وزیر صاحب صاحب کے تشریف کریں نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد تجھ سا کوئی غریب نہیں اور خستہ تن نہیں مرنے کے بعد جس کہا گورو کفن آئے پرائی بستی ہے اپنا وطن نہیں واقف یہاں کسی سے بے کس بہن نہیں ہوتا وطن مدینہ تو نکلتی گداہی کو کفن میں لا کے پہنا دیواہی کو میں مر جاواں آ تیری لاش نو گل لاواں اے ویرن میں مر جاواں آ تیری لاش نو گل لاواں تے جڑا بھیڑاں دا جگ تے لوکو باج اے ویرن میں مر جاواں آ تیری لاش نو گل لاواں اصغر کر گیا جھولا خالی ٹر پیا راہ شہید والی پانی دے مل دے چھڑیاں نے ویر عباس نے باواں اے ویرن میں مر جاواں آ تیری لاش نو گل لاواں کیڑے ساک وکھاواں تینوں گن گن زخم دکھاواں تینوں کیڑے ساک وکھاواں تینوں گن گن زخم دکھاواں تینوں جی کردا اے لاش تیری تے پٹ پٹ کے مر جاواں آئے ویرن میں مر جاواں تیری لاش نو گل لاواں امڑی ہوندی تے گل لاندی سر میرے تے چادر پاندی امڑی ہوندی تے گل لاندی سر میرے تے چادر پاندی سچ جگتے ویرن ماواں ٹھڈیاں
جزاک اللہ جی، جزاک اللہ۔ ممی میں آپ سے ایک دفعہ پھر بات کروں گا کہ آپ اپنے موبائل فون دوبارہ چیک کر لیں پلیز. آپ اپنے موبائل فون کو آف کر دیں. مامونی سے درخواست ہے کہ آگے فرنٹ پہ بہت جگہ ہے، آپ آگے آ جائیں پلیز. تھوڑا آگے آ جائیں، ہر آدمی تھوڑا آگے پلیز. بعد میں لوگ آئیں گے، پھر وہ آگے آئیں گے، مجلس ڈسٹرب ہوگی. تو میں آپ سے ابھی بہت لوگ بات آپ میں کھڑے ہیں، وہ ابھی آئیں گے. پلیز آپ آگے آ جائیں، بہت جگہ ہے، گیپ بھی ہے، سارا رشو میں مجھے ہے. آپ پلیز آ جائیں. اللہم صلی علی محمد محمد والے محمد بلندر صلوات. بارے دیگر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على رسول الله وعلى آل الله وعلى آل الله واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله الله إن الحسين مصباح الهدى وطريق النجاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب مولانا أبي عبد الله الحسين وجعلنا وإياكم مع إمامنا المهدي لطلب ثاره. عزاداران امام حسین، 3 شعبان ہے، مدینہ منورہ ہے، 3 ہجری ہے، زہرا کا گھر ہے. رسول اللہ کے ہاتھوں پر حسین ہے. ظاہر ہے جب بیٹا کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. رسول اللہ نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیا، نام حسین رکھا. ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، باقی بھی خاندان بنی ہاشم کے افراد موجود ہیں.
इसी खुशी के आलम में रसूलुल्लाह ने गिरिया करना शुरू किया। इतने रोए कि आपकी रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। जनाब ज़हरा ने परेशान होकर पूछा, बाबा जान क्या मेरे बेटे में कोई कमी है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर आए हैं कि ऐ मेरे प्यारे, ये जो मैंने तुझे हुसैन दिया है, इस हुसैन को तेरी उम्मत का बागी ग्रोह 3 दिन का भूखा और प्यासा लखों तक सहरा में कत्ल करेगा। बीबी पूछती है, बाबा जब मेरा बेटा कत्ल होगा क्या आप मौजूद नहीं होंगे? आप फरमाते हैं, नहीं बेटा मैं नहीं हूँगा। क्या अली मौजूद नहीं होंगे? क्या मैं मौजूद नहीं होंगी? हसन मौजूद नहीं होंगे? बीबी रोती हैं, मेरा बेटा अकेला होगा? हाँ अकेला होगा, और उसके साथ उनकी बहन ज़ैनब होंगी। फिर भी पूछती हैं, मेरे बेटे पर कोई रोने वाला नहीं होगा? फरमाते हैं, रोने वालियां तो मौजूद होंगी, लेकिन उनको रोने की इजाजत नहीं होगी। रोने की इजाजत नहीं होगी। बीबी ये जुमले सुनकर रोने लगी तो कहा, मेरे बेटे पर कोई रोने वाला नहीं होगा? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं, नहीं बेटा ज़हरा, अल्लाह तबारक व तआला एक कौम को खल्क़ करेगा जो तेरे बेटे हुसैन का मसाइब सुनकर इस तरह रोएंगे जिस तरह वो अपनों पर भी नहीं रोते। जब बीबी पाक ने ये जुमले सुने तो कहा, बाबा फिर मैं उनके लिए दुआ करूंगी। बाबा मैं फिर उनकी शफाअत करूंगी। ऐ हुसैन का नाम सुनकर हुसैन पर रोने वालों, ये रोना आपका जनाब ज़हरा की तसल्ली का सबब है। ज़हरा को चैन नहीं होता जब करबला वालों के मसाइब को याद करती हैं तो कब्र में अब भी बैठ कर रोती हैं, लेकिन जब हुसैन की मजलिस में रोने वाले इस तरह रो रहे होते हैं कि जैसे कोई अपने पर रोता है, तो फिर बीबी को तसल्ली होती है और फिर दुआ देती हैं, कहती हैं कि ऐ अल्लाह ये मेरे हुसैन पर रो रहे हैं, इनके गुनाह बख्श दे। रिवायत में है हर अमल का एक सवाब मुअय्यन है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर अमल का सवाब मुअय्यन है, उसकी मिक़दार मुअय्यन है। एक अमल ऐसा है जिसके सवाब की कोई हद नहीं, कोई मिक़दार नहीं। पूछा गया वो कौन सा अमल है? आपने फरमाया वो मेरे दादे हुसैन पर आंसू बहाना। मेरे दादे हुसैन पर निकलने वाले आंसू की कोई कीमत नहीं है। और कभी इस रोने की अहमियत को बताने के लिए अपने एक रावी से कहते हैं, या मस्मा, अल्लाह आपके इस आंसू के कतरे पर रहमत नाज़िल करे जो आपकी आंख से गिरते हैं। खुदा की कसम हमें आपके ये आंसू बहुत पसंद हैं, और यही आंसू हैं कि जिनसे दीन महफूज है, जिनसे करबला महफूज है। और फिर मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम ऐ मस्मा, तुम उन लोगों में से हो जो हमारी खुशी में खुश, हमारे गम में गमगीन होते हैं। और देखो ये तुम हमारे मसाइब सुनकर, मेरे दादा के मसाइब सुनकर तुम रोते हो ना, तो इसका तुम्हें बड़ा बदला मिलेगा। और कब मिलेगा? ये बदला उस वक्त मिलेगा जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह कब्ज करने आएगा। तो उस वक्त इसका बदला इस शक्ल में मिलेगा कि मैं, मेरे आबा अजदाद हुसैन
रसूलुल्लाह अली सब आपके पास मौजूद होंगे। इससे बड़ा है अली के शिया अज़ादारान हुसैन कितना करीम घराना है कि फरमाते हैं ये जो तुम बैठकर रोते हो इसका बदला इसी दुनिया में तुम्हें उस वक्त मिलेगा कि जब आपकी मुश्किल होगी, उस वक्त हम आकर मौजूद होंगे और वहीं पर आपको खुशखबरी देंगे और आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को अपने हुसैन की पहचान करवाई। कभी अपने कंधों पे बिठाकर, अपने दोष पर सवार करके मदीना की गलियों में चलकर, और जब कोई कहता है कि सवारी बहुत अच्छी है तो फरमाते हैं ये मत कहो, बल्कि सवार कितने अच्छे हैं कि जो दोष नबूवत के सवार हैं। कभी खुतबा दे रहे होते थे, सामने हसन और हुसैन आ जाते थे, खुतबा छोड़ देते थे, हुसैन को बगल में ले लेते थे और फरमाते थे ओ मेरी उम्मत, ओ मेरे कलमा को सुनो, ये हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन को तकलीफ न देना। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो हुसैन से मोहब्बत करना, हुसैन से मोहब्बत करने से तुम्हें खुदा की दोस्ती नसीब होगी। और कभी फरमाते कि हसन हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, अगर जन्नत चाहिए तो इनसे मोहब्बत करो। कभी फरमाते हसन हुसैन दोनों इमाम हैं, चाहे ये घर बैठ जाएं तब इमाम है, ये मैदान में उतरे तब इमाम है, इनकी इताअत करना, इनकी मुखालफत न करना। कभी फरमाते हसन हुसैन मेरे दो खूबसूरत फूल हैं खुशबूदार, और देखो इनसे मेरे दिल को ठंडक पहुंचती है, इनको अजियत देकर मेरा दिल न दुखाना। और तरह कभी सजदे की हालत में हुसैन को अपनी पुश्त पर बिठाकर सजदा तुलानी करके उम्मत को बताया कि देखो हुसैन वो है कि जब वो मेरी पुश्त पर आ जाते हैं तो अल्लाह को हुसैन का यहाँ बैठना इतना पसंद है कि मुझे सजदे के तुलानी करने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन हुसैन को पुश्त से हटाने का हुक्म नहीं दिया जाता। हाँ, ये वही सजदा ही तो था जिसका बदला हुसैन ने करबला में दिया। वहां तो हुसैन जब पुश्त पर सवार हुए तो जब तक हुसैन खुद नहीं हटे रसूलुल्लाह ने सर सजदे से नहीं उठाया। आज करबला में हुसैन ने ऐसा सजदा किया जो कायनात के सारे सजदों की बका का जरिया बन गया। आगे 60 हिजरी जिस हुसैन के लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया था इस हुसैन से जाकर हिदायत लेना, इस हुसैन से जाकर इल्म लेना, इस हुसैन से जाकर कुरान पढ़ना, हुसैन को कुछ बताना नहीं। हुसैन अल्लाह के मकतब का फारिग तहसील है, हुसैन का इल्म इलाही इल्म है, हुसैन की ज़बान खुदा की ज़बान है, हुसैन का पूरा वजूद खुदा की ज़ात का मज़हर है, हुसैन खुदा की पहचान है, हुसैन अंबिया की मेहनत का समर और अंबिया की मेहनत की बका है, हुसैन मेरे दीन का निगहबान है, हुसैन तुम्हारे लिए मीनाराए हिदायत है, हुसैन नजात का रास्ता है, हुसैन नजात की कश्ती है। अगर हुसैन की कश्ती पर सवार नहीं होगे हलाक हो जाओगे। अगर इस्लाम चाहते हो तो मेरे हुसैन के दर पर झुकना, अगर ईमान की तस्दीक चाहते हो तो हुसैन के दर पर जाना, अगर जन्नत की ख्वाहिश है तो हुसैन के दर से जाकर मांगना। इन रुमतन नजात फजुर हुसैना, शुअरा ने भी कहा अगर तुम नजात का कष्ट करते हो तो हुसैन की मुलाकात के चलो, हुसैन ही है नजात का वसीला। सब कुछ कहे गए, लेकिन उम्मत है कि आज उसी को अपने आगे झुकाने पर तुल गई है। हुसैन ने नबूवत की जबान चूसी है, ऐलान करते हैं मिसली ला युबायु मिसला, मैं नबूवत के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा ताल्लुक़ मरकज़ हिदायत से है, मैं सरचश्मे हिदायत हूँ, मैं आगाज़ कायनात हूँ, इख्तिताम कायनात हूँ। मैं उनके सामने नहीं जो सकता जो मजमूआ शर हैं,
जो इबलीसी कुव्वतों के नुमाइंदे हैं। हुसैन अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के फरीज़ा को ज़िंदा करने के लिए, हुसैन इस्लाम के लिए दिफाई लैन तामीर करने के लिए, हुसैन इस्लाम को क़यामत तक के लिए हिफाजत अता करने के लिए, हुसैन इस्लाम की बुनियादों को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए मदीना छोड़ते हैं, मक्का तशरीफ लाते हैं। मक्का हज के इहराम बांधे हुए तोड़ देते हैं। लोग हज पर आ रहे हैं और बानी हज, जान इबादत मक्का को छोड़कर करबला के सहरा की तरफ रवाना हो रही है। हातिफ ने आवाज देकर कहा होगा, ओ मुसलमानों, इस बेजान इबादत का क्या फायदा, इस बेरूह हज का क्या फायदा। हज की रूह तो मक्का छोड़कर जा रही है और तुम हज कर रहे हो। हाँ, हुसैन ने ये तशखीस दे दी थी कि आज हज भी खतरे में है, आज काबा भी खतरे में है। अगर मैं हुसैन करबला में जाकर इस काबा की दिफा के लिए एक नया काबा तामीर न करूं, न काबा रहेगा, न नाम खुदा रहेगा, न हज रहेगी, न नमाज रहेगी। हुसैन आ गए करबला में। करबला में आकर 2 मुहर्रमुल हराम 3 मुहर्रमुल हराम की रात 60,000 तोला सोने के वजन के बराबर पैसे देकर 4 मील बाई 4 मील 4 मुरब्बा मील रकबा खरीद किया, ताकि यहाँ पर अगर दफन हो तो अपने मिल्क में, और फिर खरीद करने के बाद बनी असद को दे दिया। कहा इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो, शर्त यह है कि जो मुझ गरीब की ज़ियारत करने आए उसको मेहमान अपने पास रखना। लोग दूर दूर से मेरे दरवाजे से हिदायत लेने के लिए यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ पर आकर परेशान न हो। अज़ादारो, हुसैन है अकेले, कूफा से लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं और इस बड़ी ममलकत जो इस्लाम के नाम पर कायम थी, मुख्तलिफ सूबों से भी फौजी दस्ते पहुँचे हैं। शाम के हामी अफवाज की कसरत की हद बयान नहीं की जा सकती। कूफा शहर 12 बाई 36 मील के रकबे पर था और 7 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने यह आर्डर दिया था कि कोई मर्द कूफा में न रहे। बाकायदा फौज तनख्वाहदार 30,000 थी जो मैदान करबला में उस 6 मील के एरिया में मौजूद थी। लेकिन पुश्त दर पुश्त चारों तरफ से एक इंसानों का समंदर था जो ज़हरा के बेटे को कत्ल करने के लिए जमा था। और हुसैन के पास कितने हैं? 72। और जो कुछ और आके मिले तो ज्यादा से ज्यादा तादाद जो करबला में शहीद होने वालों की लिखी गई है, ये 72 वो थे जो चुन कर लाए थे, और बाकी वो हैं जो करबला में आकर शामिल हुए। उनके नाम भी इन्हीं शुहदा में क्योंकि शामिल थे, उन्होंने भी करबला में हिस्सा लेना था, तो वो तादाद 145 बनती है। लेकिन मदीना से शाम तक और शाम से वापसी मदीना तक इस पूरे सिलसिले में जितने अफराद काम आए हैं, और ख़वातीन, मर्द, बच्चे और बूढ़े, उनकी तादाद 313 बनती है। और इस अदद की एक खासियत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अम्बिया की मदद के लिए भी इसी अदद का इंतखाब किया, और अपने दीन की बका के लिए भी जो अफराद काम आए उनके लिए भी इसी अदद को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया। सलवात पढ़ दीजिए।
हुसैन अपनी मंसूबा बंदी के साथ करबला में मौजूद हैं। मदीना से लेकर मक्का और मक्का से लेकर करबला और 2 मुहर्रम से लेकर रोज़े आशूर तक मौला ने हर मरहले पर अपना पैगाम पहुंचाया है और उसमें अपनी कुर्बानी का हदफ और मकसद भी बताया है। और उस मकसद को अगर एक जुमले में हम कहना चाहें तो वह है नाम खुदा की बका। हुसैन ने अपना सब कुछ देकर अल्लाह के नाम को बचा लिया और अल्लाह ने भी ये ऐलान किया, ऐ हुसैन अब मैं उस पर राजी हूँगा जिस पर तू राजी है। जब तक तेरी रजा की सनद किसी के पास नहीं होगी, चाहे मेरी नमाजें पढ़े, रोजे रखे, हज करे, जिहाद करे, सदकात और खैरात दे, लेकिन अगर उसके पास हुसैनियत की सनद नहीं है, अगर उसे हुसैनी मोहर नहीं लगी हुई, अगर हुसैन की रिजायत उसके पास नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस शख्स की ये तमाम इबादतें उसके मुंह पर मारी जाएंगी, क्योंकि हुसैन ने अल्लाह के नाम को बका अता की है। और अल्लाह ने जो लम यजल और वला यजाल है, रोज़े आशूरा ही था कि जब अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूकात ने खुदा की खिदमत में अर्ज किया था कि या अल्लाह हम तेरे हुसैन की मदद के लिए जाना चाहते हैं। सब आए और हर मखलूक ने अपनी वजूदी हैसियत के मुताबिक आकर हुसैन की खिदमत में अपनी मदद देने का ऐलान किया। हुसैन ने फरमाया, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है, मुझे तुम में से किसी की मदद की जरूरत नहीं है। शब आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की आजमाइश की और बहुत सारी हिदायत हैं, बहुत सारे दरूस हैं। 2 दर्स ये भी दिए मौला ने। एक दर्स तो ये था कि कहा तुम सब ने शहीद हो जाना है, देखो किसी ने किसी का कर्जा तो नहीं देना, यानी सबको बता दिया सब ने मारा जाना है, हत्ता वो शीर खार असगर भी नहीं बचेगा। और फिर पूछते हैं देखो किसी ने किसी का कोई कर्जा तो नहीं देना। शहादत की मौत बड़ी अजमत की मौत है, गुनाहों की बख्शिश का वसीला है, लेकिन करबला के बानी, दीन की बुनियादों को मुस्तहकम करने वाली हस्ती, अंबिया की मेहनत को बचाने वाली शख्सियत, नामे खुदा की बका, हुसैन इस कदर इंसानी हकूक की अहमियत के कायल हैं कि उन सब से कह रहे हैं कि अगर किसी ने किसी का कुछ देना है, चाहे अपने पीछे किसी का देना है, तो वो भी बताए, हम उसका अदा किए देते हैं। और साथ ही मौला ने सब पर्दे हट गए, हर एक ने अपना मकाम देखा और मौला ने फिर एक और खुशखबरी दी, देखो मेरा बेटा महदी जरूर आएगा, वो मुंतकिम है, उसने आकर हमारे इस खून नाहक का बदला लेना है, बल्कि कायनात में जितने नाहक खून बहाए गए हैं सब का आके उसने बदला लेना है। और फिर फरमाते हैं कि मेरी तो अपनी ख्वाहिश है कि काश मैं भी अपने उस बेटे की सिपाह में शामिल होकर उसकी मदद करता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये खुशखबरी दे रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फिर दोबारा उठाएगा। जब मेरा मेहदी आएगा तो मेरी मेहदी के साथ तुम सारे मेरे असहाब मौजूद होगे और उस वक्त तुम्हारी खुशी की इंतहा नहीं होगी कि जब तुम मेरे बेटे महदी की क़ियादत में और उनकी सरबराही में दुनिया के तमाम दुश्मनों को, जो हमारे दुश्मन हैं और जो अंबिया के कातिल हैं, अंबिया की औलाद के कातिल हैं, औसिया के कातिल हैं, औसिया की औलाद के कातिल हैं, तुम इन्हीं तलवारों के साथ उनसे इंतकाम ले रहे होगे। दुआ करें कि वो वक्त जल्द आए कि जब हजरत हुज्जत हक तशरीफ लाएं और हम भी उनके साथ हों
اور دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے. ہو گئی صبح کی نماز. حسین نے اپنے رب سے کی مناجات. اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدت. تو ہی میرا سہارا ہے ہر مشکل میں، ہر سختی میں. میں نے تیرا رخ کیا ہے ایسے مراحل میں کہ جب دوست چھوڑ جاتے ہیں، دشمن زبان کھولتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، لیکن ان تمام مشکلات میں تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا منتہا آرزو ہے. اور حسین نے صف بندی کی. عزادارو، پہلی قربانی مولا حسین کی صبح عاشور. 40 سے زیادہ اصحاب ہیں جو شہید ہوئے، جو یکدم حملہ کیا گیا ہے. اور جب تیروں کی بارش ہوئی ہے تو یہ تیر خیام کے اندر بھی گئی ہیں اور بیویوں کی چادروں سے بھی جا کر پمست ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور ایک کی لڑائی یعنی مبارزے والی جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. ہو گئی عاشور کی ظہر. آپ کے ایک صحابی ہیں، ظہر کا وقت 10 اکتوبر 680 ہجری تقریباً 11:30 بجے عراق کے اوقات کے مطابق ہو جاتا ہے. اس سے تھوڑا کم وقت یا تھوڑا زیادہ ہوگا. بہرحال آپ کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابو ثمامہ ساعدی. وہ آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کر کہتے ہیں مولا قد حان وقت الصلاۃ. نماز کا وقت ہو گیا اور میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ایک اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. حسین کے غم میں رونے والوں، کربلا میں گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے. ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں ہیں، تیروں کی بارش ہے. اس حال میں اول وقت کی طرف ابو ثمامہ نشاندہی کرتے ہیں. مولا کریم ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. نعم ھذا اول وقتھا. تو نے نماز یاد دلائی ہے، اللہ تجھے نمازیوں میں سے اور اپنا ذکر کرنے والوں سے قرار دے. ہاں یہ اول وقت ہے. صلوہم ان یکفوا عنا لنصلی. ان سے کہو تھوڑا ٹھہر جاؤ، ذرا جنگ روک دو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں، تاکہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے ہیں، زہیر ابن کین بھی ساتھ ہیں اور آواز دیتے ہیں ٹھہرو، رکو، حملہ بند کرو. جب تھوڑا سا توقف ہوتا ہے تو حبیب ابن مظاہر اپنے آقا کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ میرے مولا نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تم تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو. جواب میں ایک کمینے نے بکواس کی، کہا کہ تمہاری نماز تو قبول نہیں ہوگی، تم کون ہو؟ حبیب بن مظاہر نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا یا حمار اتقبل صلاتک ولا یقبل لابن رسول اللہ. کیا اے حرام زادے، اے گدھے، کیا تمہاری نمازیں قبول ہوں گی اور فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ بہرحال حبیب بن مظاہر اور زہیر بن کین ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہیں. جنگ شروع ہے. ادھر جنگ کی حالت میں نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے اور اس کا مخصوص طریقہ ہے. ایک گروپ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک گروپ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ان ظالموں نے حسین کو مہلت نہیں دی کہ حسین نماز ادا کریں، لذا ایک دستہ جس میں حبیب ابن مظاہر اور زہیر ابن کین بھی ہیں اور میرا دل کہتا ہے کہ عباس بھی جنگ میں مصروف ہوں گے کیونکہ یہ ظہر کے وقت سارے اہل بیت موجود ہیں. ادھر سعید اور عمرو بن قرظہ انصاری یہ 2 مجاہد یہ مولا کے سامنے دیوار بنتے ہیں.
मौला के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और मौला नमाज शुरू करते हैं। थोड़ी सी तादाद कुछ जंग लड़ रहे हैं, बिलखसूस हबीब इब्न मज़ाहिर और ज़ुहैर इब्न कैन के बारे में है, बाकी अफराद के नाम नहीं हैं और बाकी जो है आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं। यकीनन अली अकबर भी अपने बाबा के साथ खड़े होंगे, कासिम भी अपने बाबा के साथ खड़े होंगे नमाज पढ़ने में, और मोहम्मद भी होंगे। हाँ, अभी जोहर का वक्त है, अभी थोड़े 2 घंटे बाद या 2.5 या 3 घंटे बाद हुसैन अकेले होंगे, ना होंगे ना मोहम्मद, ना अब्बास होंगे, ना अकबर, ना कोई दिफा करने वाले होंगे, ना कोई हुसैन की हिफाजत करने वाले होंगे। आजादारों, हुसैन नमाज पढ़ चुके। हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम। जो भी तीर आता था, जो भी पत्थर आता था, सईद आगे बढ़कर लेते थे, अम्र बिन कुर्जा अंसारी आगे बढ़ के लेते थे। दोनों ने इस अंदाज से तरतीब बनाई थी कि कोई एक भी तीर मौला हुसैन तक पहुंचने न जाए। जैसे ही मौला हुसैन ने नमाज ख़त्म की है, आपके जो बकिया अफराद हैं उन्होंने आपको घेर लिया है और मौला के सामने सईद ज़मीन पर गिरे हैं। मौला पहले सईद की लाश पर आए हैं, सईद के कुछ सांस आ रहे थे। सईद कहते हैं हल अफौत मौला, मौला मैंने वफा की, मौला मैंने वफा की, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, मौला मैंने वफा की। तो मौला फरमाते हैं नाम नाम अंता अमामी फिल जन्ना, तुम मेरे आगे जन्नत जा रहे हो। हाँ हाँ, तुमने वफा की, तुमने वफा की। यानी इतनी कुर्बानी के बाद भी मौला से तस्दीक मांग रहे हैं। और फिर मौला आए हैं अम्र बिन कुर्जा अंसारी अपने दूसरे मुजाहिद की लाश पे। वो मौला को एक दफा आंख खोलता है, खुशी से चेहरा खिलखिला उठता है और अपनी आखिरी सांस से आहिस्ता आहिस्ता कहता है मौलाई हल औफैतो, मौला मैंने भी वफा की। सुन रहा था कि सईद को मौला ने क्या जवाब दिया। कहते हैं मौला मैंने भी वफा की। मौला ने फरमाया नअम अंता अमामी फिल जन्ना, आप मेरे आगे जन्नत जा रहे हैं। और यहाँ पर इब्ने कुर्जा को मौला ने एक पैगाम भी दिया है, फकरा रसूलुल्लाह अन्नी अस्सलाम। अभी तू जाकर मेरे नाने से मुलाकात करेगा, मेरे नाने को जाकर मेरा सलाम देना, कहना तेरा मजलूम बेटा तुझे सलाम कह रहा है, वह हुआ फी इसरी अन करीब। और मेरे नाने को बता देना कि तुम्हारा बेटा बस थोड़े देर बाद वो भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। आजादारों, मौला के लिए एक बड़ी गमनाक सूरत हाल पैदा हो गई है। किसी ने आकर कहा कि मौला हबीब जमीन पर गिर गए, मौला हबीब जमीन पर गिर गए, क्योंकि हबीब जंग कर रहे थे उन जालिमों के साथ। इधर मौला नमाज पढ़ रहे थे, हबीब और ज़ुहैर इब्न कैन दोनों जंग में मसरूफ थे। मौला हबीब की लाश पर गए हैं। हबीब जो रसूलुल्लाह के बूढ़े सहाबी हैं, और ये वही हबीब है कि जिनकी उम्र 15 साल थी, हुसैन की उम्र 3 या 4 साल थी। हुसैन बच्चों के साथ दौड़ रहे थे और रसूलुल्लाह इस मंजर को देख रहे थे कि हबीब क्या करते हैं, जहाँ से हुसैन गुजरते हैं बैठ जाते हैं, हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी उठाकर अपनी पेशानी पर भी मलते हैं, अपने रुखसारों पर भी मलते हैं। उसी वक्त रसूल पाक ने फरमाया था कि ये हबीब मेरे बेटे हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करेगा। और ये वही हबीब है कि जिनको मौला हुसैन ने फकीह का लक़ब दिया, आलिम असरार आले मोहम्मद। 5 शख्सियतें थी जो असरार आले मोहम्मद के अमीन थे। उनमें एक हबीब थे, एक मोहम्मद इब्न अबी बकर थे, एक मीसम तम्मार थे, एक रशीद हिजरी थे और एक अम्र बिन हमुक थे। ये 5 हस्तियां थी जो अमीन असरार आले मोहम्मद थे। मौला हबीब की लाश पर बैठ गए। बाकी जो उस वक़्त असहाब जिंदा है वो भी मौजूद हैं। मुस्लिम इब्न औसजा है या कोई और सहाबी है, हबीब से पूछते हैं कि हबीब कोई वसीयत करनी है। मौला भी वहीं पर मौजूद है। हबीब का आखिरी वक्त है, अपने बूढ़े साथी को रवाना कर रहे हैं क्योंकि 65 या 70-75 साल की उम्र बनती है हजरत हबीब की। और हबीब पता क्या कहते हैं, मुस्लिम से कहते हैं उसी का ब्याह था, मैं आपकी हुसैन की वसीयत करता हूँ, हुसैन तन्हा न रह जाए, हुसैन का ख्याल करना।
हुसैन को कोई तीर न लगे। अज़ादारों, हुसैन को हबीब ने अलविदा कहा। मौला हुसैन ने हबीब की पेशानी का बोसा लिया और फरमाया, इंदल्लाह अहतसिबु नफ्सी व हुमात अस्हाबी। मेरे लिए बड़ी मुसीबतें आसान हैं क्योंकि ये सब मैं अल्लाह के सपुर्द कर रहा हूँ। मैं खुद भी अल्लाह के हवाले हूँ, मेरे सहाबियों के हामी भी अल्लाह के हवाले हैं। अज़ादारों, जब तक असहाब जिंदा रहे हैं और जब तक हजरत अब्बास मौजूद रहे हैं, मौला हुसैन को कोई जख्म नहीं आया। ये अजीब है। लाशें भी लेने जाते थे, लेकिन ऐसी दिफाई दीवार बनते थे, मौला की तरफ कोई न पत्थर आ सकता था न तीर, खुद बर्दाश्त करते थे। पहला जख्म मौला हुसैन को कब आया है? जब अपने असगर को लेकर मैदान में आए और असगर के लिए पानी मांगा है। शियो, मौला ने तुम्हें एक मुश्किल वक्त में याद किया है। मुश्किल वक्त में अपने याद आते हैं ना, तो मौला ने फरमाया, या शियती, ए मेरे शियो, काश तुम करबल में मौजूद होते, फनजुरूनी, और मुझे देखते, कैफ अस्तस्की लितिफलिन, मैं छोटे से बच्चे के लिए किस तरह पानी मांग रहा हूँ, मेरी उस कैफियत को देखते। क्योंकि शरीफ के लिए सवाल करना बड़ा मुश्किल, शरीफ के लिए सवाल करना बड़ा मुश्किल होता है। लिजा मौला फरमाते हैं, काश मेरे शियो मेरी उस हालत को देखते कि मैं किस तरह सवाल कर रहा हूँ, वो भी कमीनों से मांग रहा हूँ, मेरी उस दर्दनाक कैफियत को देखते। अबो, लेकिन उन्होंने इनकार किया और मेरे छोटे से बच्चे के लिए पानी नहीं दिया। और जब तीर आया तो उस वक्त मौला का बाजू जख्मी हुआ। अज़ादारों, वक्त गुजर रहा है, असहाब बारी बारी अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं। एक और सहाबी का तज़किरा हो जाए। एक सहाबी हैं हजरत जौन, जो जनाब अबू ज़र के गुलाम थे। अब इसी से अंदाजा लगा ले कि जौन की उम्र करबला में कितनी थी। ये गुलाम थे हजरत अबू ज़र के। लिजा रिवायात में है कि इस बूढ़े गुलाम की उम्र कोई 70 साल से भी ज्यादा थी। सियाह रंग है और पसीने से खुद वो कहते हैं बू आती है। ये मौला के पास आए हैं। मौला फरमाते हैं, ऐ जौन, आप हमारे पास आए थे सहूलत और आसानी के लिए, आप हमारे पास इसलिए नहीं आए थे कि आप अपनी जान को खतरे में डालें। मैं आपको इजाज़त देता हूँ, आप मैदान से चले जाएं और मैं दुआ भी दूंगा, तुम हिफाजत से मैदान से निकल जाओगे। पता है जौन ने क्या कहा? जौन फरमाते हैं, यब्न रसूलिल्लाह अलहसो फिर रखा अलहसो किसाअकुम। ये बड़ी एक अजीब ताबीर है। ये वो अंदर का इश्क और मोहब्बत और अपनी हकारत। मौला फरमाते हैं, जब जौन को कि आप चले जाओ, तो जौन कहते हैं मौला खुशहाली में, कसआ कहते हैं प्याले को, बर्तन को, और अलहस कहते हैं जब कुत्ता प्याले से पानी पीता है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो अलहस, लाम हे सीन, ये जुमला इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो वही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं मौला मैं आपके कासों से पीता और खाता रहूं, आपकी खुशहाली के